Hello everyone, welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani and today we'll be studying the story The Doll's House by Catherine Mansfield. Now this story is for ISC Modern English. Okay, so this is the part of perspectives. So now first we'll understand about the author and then we'll study about the story, that is the line by line explanation of the story. So about the author Catherine Mansfield Murray. She was a New Zealand writer and critic who played a significant role in the modernist movement. मतलब वैसे तो these things are not asked but just a general introduction. Her works are celebrated worldwide and have been published in 25 languages. Then Mansfield wrote short stories and poetries under the variation of her own name. Means उन्होंने अपने खुद के नेम के अंडर ही बहुत सारी स्टोरीज एंड पोइट्रीज दी थी, एक्सप्लोरिंग द थीम्स ऑफ एंजाइटी, Christianity and existentialism, that is individual freedom, liberty, alongside developing New Zealand identity. When she was of the age 19, she left New Zealand and settled in England, where she became friends with these higher authorities. और जो वहाँ पर कैसे थे, they were associated with Bloomsbury Group, means that is a group, एक historical hub of literature, art, medicine, एक एसोसिएशन था, तो उन्हीं के वो पार्ट्स है और उन्हीं की ये फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे. So in 1917, Mansfield was diagnosed with pulmonary tuberculosis and then she passed away in France when she was 34. Okay, so now we will study about the story, that is The Doll's House. ये आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होता है जस्ट टू यूज़ इट इन द पार्ट ऑफ लॉन्ग आंसर्स जो 10 मार्क्स के होते हैं. एंड अभी तो काउंसिल विल ऑल्सो बी गिविंग यू द स्पेसिमेन पेपर, जिसमें ऑब्वियसली मॉडर्न इंग्लिश इज़ अ अदर सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल इंग्लिश ऑफ मैकबेथ एंड ऑल. तो ये डेफिनेटली इसका जो स्पेसिमेन पेपर होगा वो दैट विल बी इशूड टू just to tell you कि हाँ whatever is the pattern and all, so that also we will discuss. Maybe in the month of July or June it will be surely published by the council. Abhi it has not come. So Catherine Mansfield, The Doll's House is a tale, means it is a story about the influence of class distinctions in a small village. एक प्लेस पे जहाँ पर रिच क्लास एंड पुअर क्लास दोनों रहते हैं, वहाँ का क्लास डिफरेंस यहाँ पर बताया गया है. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द डॉटर्स ऑफ टू फैमिलीज. देयर आर टू डिफरेंट फैमिलीज, द वेल्दी बर्नल्स एंड द लोअर क्लास केल्वीज एज प्रिविलेज्ड इनसाइडर्स. तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर दो फैमिलीज रहती हैं, बर्नल्स एंड द पुअर क्लास केल्वीज एज प्रिविलेज इंसाइडर्स. मतलब जस्ट बिकॉज कि वो उस विलेज में, उस प्लेस में, उस एरिया में बहुत जाने जाते हैं. सो द बर्नल्स डू नॉट एसोशिएट विद आउटसाइडर्स लाइक केल्वीज. कॉन्सिक्वेंटली द यंग बर्नल सिस्टर्स रिसीव अ डॉल्स हाउस. और वहाँ पर ये जो पूरी स्टोरी ये ऐसे घूमती है कि जहाँ पर जो बर्नल्स की वहाँ पर उस फैमिली में दो छोटी छोटी बेटियाँ थी, लड़कियाँ थी, एंड वो दे रिसीव अ डॉल्स हाउस. उनको उनके रिलेटिव ने एक डॉल्स हाउस गिफ्ट किया था. ऑल द लिटिल गर्ल्स एट द स्कूल आर इन्वाइटेड टू सी एक्सेप्ट फॉर द केल्वीज. मतलब कि सबको ही, जितने भी स्कूल में बच्चे थे सब इन्वाइटेड थे घर आकर के देखने के लिए बारी बारी, बट केल्वीज sisters were not allowed. Why? Because they belonged to the lower class, poor class. While the doll's house primarily focuses on the interactions among the young girls, we are just understanding the how they are being abroad. ठीक, उनकी bringing कैसी हुई है. It's not a story only about childhood behavior. It actually serves the reflections of the society. कि society जिसमें आप raised हो, आप पले बड़े हो, you are mirroring the values and prejudices instilled in them by their parents and elders. मतलब कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें क्या सिखाया है, हमने इस डॉल्स हाउस से ये पढ़ा. ओके, सो द स्टोरी द डॉल्स हाउस. नाउ यहाँ पर वील अंडरस्टैंड कि डॉल्स हाउस आता है और उसके बाद वहाँ पर द फ्रेंड्स ऑफ दोज लिटिल सिस्टर्स कम टू सी द house, and then what happens further. So when dear old Mrs. Hay went back to town after staying with the Burnells. अब सपोज करो कि ये बर्नल्स का घर है और यहाँ पर there was a lady जो यहाँ पर एक गेस्ट बन कर के आई थी. अब जब वो यहाँ से जाने लगी
तो इन्होंने एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट इनको एक हाउस गिफ्ट किया था, एंड दैट हाउस इज नोन एज द डॉल्स हाउस. Okay, staying with the Bernal, she sent the children a doll's house. It was so big that the carter and Pat carried it into the courtyard. Means वो बहुत बड़ा सा house था. वैसे वो टॉय हाउस था, मतलब इट वॉज नॉट अ एक्चुअल वन, बट स्टिल इट वॉज बिग इनफ दैट द कार्टर, द वन हु कैरीज और ट्रांसपोर्ट्स द गुड्स बाय कार्ट, एंड पैट द हैंडी मैन. यहाँ पर जस्ट बिकॉज कि पैट के लिए एज सच कुछ बताया नहीं गया है कि ही हु इज़ ही, तो येस यू कैन कंसिडर इट एज अ हैंडी मैन जो वहाँ से सामान इधर से उधर पहुँचा रहा होता है. तो दे बोथ कैरीड इट टू द कोर्ट यार्ड एंड देयर इट स्टेड propped up on 2 wooden boxes. मीन्स और वहाँ पर उसको हमने सपोर्ट करके रखा 2 wooden boxes पे. 2 wooden boxes पे एक डॉल हाउस रखा गया था. Where besides the feed room. ठीक, फीड रूम जहाँ पर एनिमल्स को खाना खिलाया जाता है, जहाँ पर उनका सारा सामान जो होता है वो सब रखा होता है. नो हार्म कुड कम टू इट, इट वॉज समर, एंड जस्ट बिकॉज कि उस समय समर्स का टाइम था तो उसको कोई भी नुकसान नहीं होता अगर वो बाहर भी रखा रहता. एंड परहैप्स द स्मेल ऑफ द वुड पेंट वुड हैव गॉन ऑफ बाय द टाइम इट हैड टू बी टेकन इन. और जब तक बाय द टाइम जब तक उसको बाहर रखेंगे हम धूप में समर्स में, तब तक उसकी जो स्मेल है पेंट की वो भी चली जाएगी. फॉर रियली द स्मेल ऑफ द पेंट कमिंग फ्रॉम दैट डॉल्स हाउस, नो डाउट इट इज़ वेरी स्वीट ऑफ मिसेस हे ऑफ कोर्स कि उन्होंने वेरी स्वीट एंड जेनरस कि उन्होंने ये गिफ्ट किया. बट स्टिल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्मेल ऑफ द डॉल्स हाउस पेंट, द स्मेल was quite enough to make anyone seriously, but just because कि वो एक नॉर्मल जैसे घर पेंट होता है वैसे उसमें स्मेल आ रही थी, बिकॉज इट वॉज एक्चुअली पेंटेड, तो इट वॉज क्वाइट इनफ कि किसी को भी वो बीमार कर सकते थे. इन आर्ट बेरल्स ओपिनियन, आर्ट बेरल्स जो वहाँ पर रहती थी उस बर्नल्स हाउस घर में, उनके ओपिनियन में कोई भी बीमार हो जाता है अगर वो उसको उस स्मेल को सूंघ लेता. तो इवन बिफोर द सैकिंग वॉज टेकन ऑफ, वेन इट वॉज मीन्स जब भी सैकिंग जो थी, जो उसके ऊपर की आउटर कवरिंग थी उसको जब भी निकाला गया था, वेन एवर इट वॉज देन देयर स्टूड द डॉल हाउस. तो उस टाइम पर ही हर कोई, मतलब उस जो स्मेल थी उससे एवरी वन वॉज लिटिल ट्रबल्ड. सो फीड रूम यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इट इज़ अ डेडिकेटेड ड्राई सिक्योर स्पेस यूज्ड टू स्टोर मिक्स एनिमल फीड्स जैसे ग्रेन सप्लीमेंट्स फॉर लाइफ स्टॉक्स और पेट्स. ठीक, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉल्स हाउस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर इट मे हैपन कि आपसे पूछ लिया जाए कि डॉल्स हाउस का डिस्क्रिप्शन दो. सो देयर स्टूड द डॉल्स हाउस. इट वॉज अ डार्क ऑयली स्पिनच ग्रीन पिक्ड आउट विद ब्राइट येलो. मीन्स यहाँ पर कलर्स बताए जा रहे हैं जिसमें ग्रीन और येलो है. अभी आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो ऑफ इट सो दैट आपको ये चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आ जाए. तो 2 solid little chimneys were there that was glued on the roof. They were painted red and white and the door gleaming with yellow varnish, means जो transparent paint होता है as a polish, तो वो on the gate was used, was like a little slab of toffee, means a little slab of caramel. ठीक है, because toffees usually caramel से ही बनती हैं. Then after that 4 windows, real windows were divided into panes by the broad streak of green. There was actually a tiny porch, 2 painted yellow with big lumps of congealed, means liquid paint hanging on the edge. तो यहाँ पर I'll be showing you the photo of it. तो ये देखो, this is the doll's house. अभी तो जो बाहरी पिक्चर है उसी को ही समझो इसमें कि विंडो पेन्स आ देयर, चिमनीज आ देयर, पूरे को इस तरह स्पिनच ग्रीन, जो वो पालक, स्पिनच इस पालक, तो पालक वाला ग्रीन कलर जो होता है उसको रखा गया. पॉर्च होता है कि जो आपका घर के बाहर का ये वाला एरिया होता है, बालकनी जैसे यहाँ पर होती है, यहाँ का ये जो एरिया होता है दिस इज नोन, जिसे कहते हैं दहलीज या फिर
दिस इज़ द ओनली वर्ड आई एम, थ्रेशोल्ड कह सकते हो, थ्रेशोल्ड वैसे ये वाला एरिया होता है, बट स्टिल ये जितना एरिया है जहाँ पर शेडेड एरिया है, कहीं पर आप खड़े हुए हो, 3 4 3 4 सीढ़ियाँ आर मेड, तो दैट इज़ नोन एज पोर्च। तो ये पूरा डॉल हाउस है, विंडोज़ आर देयर, विंडोज़ में 4 पेन्स हैं और वो अलग अलग किए हुए हैं, ठीक है। ओके, देन यू कैन सी, अभी यहाँ पर एक लिटिल लैम्प की भी बात होगी, तो दिस इज़ द लिटिल लैम्प जो उस डॉल हाउस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ डॉल हाउस, जहाँ पर 4 खिड़कियाँ हैं, एक दरवाजे साइड का एरिया है, और देख रहे हो दो वुडन बॉक्सेस हैं, उसके ऊपर इसको रखा गया। और पीछे क्या है, पीछे यू कैन सी द फीड रूम इज़ है, एक दरवाजे जैसा भी है जहाँ से अभी ये बैक डोर में रखा हुआ है, मतलब अभी पीछे से बच्चे भी आ सकते हैं देखने के लिए, ठीक। दिस इज़ द फीड रूम, जहाँ पे यू कैन सी कि कुछ खाने की चीज़ें, सामान कैन बी केप्ट। एंड दिस इज़ द पोर्च एरिया, जो सीढ़ियों वाला एरिया होता है आउटसाइड द डोर ऑफ द हाउस। ओके, सो understood, but perfect little house, but it was a perfect, very beautiful little house. Who could possibly mind the smell, because it was a part of the joy of the newness, कि कोई नई चीज़ आपके घर में आई है, तो उस नई चीज़ की जो, जैसे न्यू नोटबुक्स होती हैं या बुक्स होती हैं, तो उनके जो पेपर्स होते हैं उसमें से देर यू कैन स्मेल समथिंग वेरी ग्रेट फ्रेग्रेंस, किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती है, तो दैट वॉज द पार्ट ऑफ द जॉय बिकॉज ऑफ द न्यूनेस, की कोई चीज़ जो है वो बहुत नई है। ओपन इट क्विकली समवन, किसी ने बोला कि इसको खोलो, मतलब जस्ट हटाओ इसको, डॉल हाउस को ऐसे करके ओपन करो, दरवाज़ा उसका खोलो। द हुक एट द साइड वॉज स्टक फास्ट, पैट pried it open with a pen knife and the whole house front swung back, means कि आगे पीछे से एवरीवेयर से यू कैन सी कि एक पेन नाइफ से उसको ओपन किया उसने, दरवाजे को, उसके जो मेन डोर था उसको ओपन किया, एंड उसके बाद वो देख रहा है कि व्हाट यू कैन सी कि पूरा जो हाउस है वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। देयर यू वर गेजिंग एट वन एंड द सेम मोमेंट इन टू द ड्राइंग रूम, द डाइनिंग रूम, द किचन एंड द बेडरूम। सो हाउ यू मतलब वॉट थिंग्स यू आर सीइंग देयर, कि जब आपने उस ब्यूटीफुल से डॉल हाउस को ओपन किया तो आप वहाँ पर देख रहे हो, उस मतलब एकदम गेज कर रहे हो उसको, घूर रहे हो उसको, ड्राइंग रूम को, डाइनिंग रूम को, किचन को, बेडरूम को। दैट इज़ द वे फॉर अ हाउस टू ओपन। अच्छा, यहाँ से जो हाउस है वो जाएगा। वाई डोंट ऑल हाउसेज लुक लाइक ओपन लाइक दैट, की मतलब आवाज़ें आ रही थी कि वाह कितना सुंदर लग रहा है, कि क्यों नहीं सारे जो हाउसेज है वो ऐसे ही दिखते हैं। हाउ मच मोर एक्साइटिंग देन पियरिंग थ्रू द स्लिट ऑफ द डोर, कि वो जो डोर का एक छोटा सा एरिया है उसमें से भी वी कैन peer out into mean little hall with a hat stand and 2 umbrellas। और वहाँ पर जब आप उस डोर को ओपन करोगे तो यू कैन सी देयर इज़ अ लाइक अंदर जाने का एरिया, और वहीं पर ही एक हैट स्टैंड है, वहीं पर ही 2 umbrellas आर देयर। वट यू लॉन्ग टू नो अबाउट द हाउस व्हेन यू पुट योर हैंड ऑन द नॉकर। तो आप क्या सोच रहे हो कि अंदर जाओगे तो वट यू विल फाइंड व्हेन यू पुट योर हैंड्स ऑन द लॉकर ऑफ द गेट, ठीक। परहैप्स इट इज़ द वे गॉड ओपन्स हाउसेज। और वो इतना ब्यूटिफुल था दैट इट सीम्स लाइक कि गॉड हैज़ ओपन द हाउसेज एट द डेड ऑफ नाइट, एकदम गहरी रात में, अंधेरी रात में। when he is taking a quiet turn with an angel, when he is taking a round with an angel, उस टाइम पर वो दरवाज़ा खुलता है। it is was looking so beautiful, ठीक। oh, the Bernal children sounded as though they were in despair, it was too marvelous, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज़्यादा होपलेस, डिस्पेयर इन जनरल इज़ होपलेस, कि मतलब दे थॉट कि क्या ही होगा, बट येस इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल, इट वॉज़ टू मच फन फॉर देम। दे हैड नेवर सीन एनी थिंग लाइक दिस इन देयर हाउसेज, इन मतलब उन्होंने कभी ये चीज़ देखी नहीं थी, इतनी ब्यूटीफुल डॉल हाउस उन्होंने नहीं देखा था। ऑल द रूम्स वर पेपर्ड। अब यहाँ पर जस्ट टू रीड इट फर्स्ट, इससे पहले आई जस्ट शो यू द फोटोज ऑफ इट। सी दिस इज़ द डॉल्स हाउस, ओके, फ्रॉम इनसाइड यू कैन सी बेडरूम्स आर देयर। यू कैन सी कि एक जैसे आप ओपन करोगे डोर को तो वहाँ पर ये वाला एरिया है, यहीं पर ही
हैड स्टैंड अम्ब्रेलाज आर केप्ट. फिर उसके बाद ये ड्राइंग रूम है. ऑल द रूम्स आर पेपर्ड. पेपर, ये ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम्स आर देयर. तो पेपर्ड मतलब होता है, यू कैन सी कि यहाँ पर इतने छोटे छोटे वॉल पेपर्स लगे हुए हैं. छोटा सा हाउस है, उसमें भी छोटे छोटे से वॉल पेपर्स लगे हुए हैं. ओके, दिस इज द हैड स्टैंड एंड द टू अम्ब्रेलाज दैट आर केप्ट हेयर. दिस इज द लैम्प जिसकी अभी बात होगी इसमें. सो क्या बोला गया है? द रूम्स वर पेपर्ड, कवर्ड विद वॉल पेपर. दे वर पिक्चर्स ऑन द वॉल, पेंटेड ऑन द पेपर विद गोल्ड फ्रेम्स कंप्लीट. मीन्स there was gold frames on the wallpaper for the photos. Red carpet was covered on the floors except the kitchen. Red plush chairs in the drawing room. Means drawing room में you can see that red plush chairs. Green in the dining room. Tables, beds with real bedclothes. A cradle was there. A stove, a dresser with tiny plates and one big jug. तो ये जितनी भी चीज़ें थी, all these were kept there. But what Kezia more than anything she liked frightfully was the lamp. Now she is the little sister. जो बर्नल हाउस के दो सिस्टर्स हैं उसमें से शी इज़ द लिटिल सिस्टर. ठीक, तो यहाँ पर आपने पढ़ा रिगार्डिंग द हाउसेस. सो लेट मी जस्ट शो यू द हाउस अगैन. ये देखो, सोफ़ा, द कवरिंग ऑफ द सोफ़ा. ठीक, एवरीथिंग इज़ कवर्ड सो नाइसली. यहाँ पर बेड क्लोथ्स, असली वाले बेड क्लोथ्स रखे हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये ड्रेसर विद द प्लेट्स, आप छोटी छोटी सी प्लेट्स देख रहे हो इसमें रखी हुई हैं. ठीक, तो दीज वर द थिंग्स जो ऑलरेडी वहाँ पर थी. देन इट स्टूड इन द मिडल एंड देन देयर वॉज अ ब्यूटिफुल लैम्प. पूछा भी जा सकता है कि वॉट वॉज केजिया लाइकिंग द मोस्ट. तो शी वॉज लाइकिंग the lamp. It was standing in the middle of the dining table. Exquisite little amber lamp with a white globe. Means you can see there was a white globe inside that lamp. It was even filled already for lighting, though of course you couldn't light it. आप उसको obviously light नहीं कर सकते हो, but still ऐसे लग रहा था कि वो already उसके अंदर कुछ light जैसा है. बट देर वॉज समथिंग इन साइड दैट लुकड लाइक ऑयल एंड मूव्ड व्हेन यू शुक. और जैसे ऑयल को अगर आप ये बॉटल में देखो कि यहाँ तक ऑयल भरा हुआ है, आप इसको ऐसे ऐसे करोगे तो इट विल मूव. तो सिमिलरली द लैम्प वॉज ऑल्सो मूविंग. And the father and the mother dolls who sprawled very stiff as though they had fainted in the drawing room. The two little children asleep upstairs. मतलब वहाँ पर people were also there in the doll house में लोगों को भी दिखाया गया था that father and mother dolls were there. और वो ऐसे लग रहा था that they were sprawling in the very stiff. मतलब उनको कहीं पर ही एकदम एक जगह पर टिका दिया गया है in the drawing room. और ऐसे लग रहा था कि ड्राइंग रूम में वो फेंट हो गए हैं. एंड देयर वर टू लिटिल चिल्ड्रन अपस्टेयर्स विद रियली टू बिग. और वो ऐसे लग रहा था कि वो छोटे बच्चे जो थे वो दे वर रियली वेरी बिग फॉर द डॉल्स हाउस. बड़े बड़े लग रहे थे. मतलब दे डिडंट लुक एज दो दे बिलोंग. और ऐसे लग रहा था कि वो उस जगह को बिलोंग नहीं करते हैं. बट द लैम्प वॉज परफेक्ट. इट सीम्ड टू स्माइल at Kezia to say I live here. The lamp was real. और वो लैम्प इतना ब्यूटीफुल था, ऐसे लग रहा था कि it seemed to smile to Kezia to say. और वो ऐसे लग रहा था कि it was like smiling at Kezia and saying कि I live here, as if the lamp was real in the sense. The Burnell children could hardly walk to school fast enough the next morning. They burned to tell everybody, to describe, to well boast about the doll's house before the school bell rang. तो बेल बजने से पहले they just moved to the school and ran as quickly as possible so that they can tell everybody कि वो जो doll's house है वो कैसा है. But Isabel, she is the elder sister. Okay, Kezia is the younger sister, she is the elder sister. Kezia is younger, छोटी है वो उससे. तो Isabel says that I am to tell, मैं बताऊंगी, because I am the eldest.
you two can join in after, but I will tell first. जितने भी मतलब वहाँ पे लोग थे उसमें से इजाबल कहती है, शी इज़ अ एल्डर सिस्टर, तो वो कहती है कि मैं बताऊँगी सबको अबाउट द डॉल्स हाउस, हाँ लेटर यू ऑल कैन जॉइन इन द कॉन्वर्सेशंस, बट मैं सबसे पहले उस चीज़ को डिस्क्राइब करूँगी. सो देयर वॉज नथिंग टू आंसर. Isabel has always been very bossy. She was always right. Lotte and Kezia, means the two people who were along with them, Kezia तो उसकी सिस्टर ही थी, knew too well the powers that went with being the eldest. और उनको पता था कि अगर आप बड़े हो तो आपके मीन्स बीइंग द एल्डेस्ट आपके क्या पावर्स होते हैं इन द हाउस. सो दे ब्रश्ड थ्रू द थिक बटर कप्स एट द रोड एज एंड सेड नथिंग. सो उन्होंने यहाँ पर आई शोड यू अ फ्लावर, राइट, तो ये वाला जो फ्लावर है दैट इज़ द बटर कप. सो ये रोड के एज में लगे हुए थे और उन्हीं से ही अपने हाथ ऐसे करके फेरते हुए ब्रश करते हुए दे वर जस्ट मूविंग. सी दीज आर द बटर कप फ्लावर्स. ओके, आई एम टू चूज़ हुज टू कम टू सी इट फर्स्ट. और मैं ये चूज़ करूँगी कि कौन आएगा उस डॉल हाउस को पहले देखने. एक साथ तो वी विल नॉट कॉल एवरीबडी, बट येस आई विल डिसाइड. और मदर ने भी मुझे कहा है कि येस आई माइट, कि ठीक है तुम ये डिसाइड कर सकती हो. फॉर इट हैड बीन अरेंज्ड वाइल द डॉल्स हाउस स्टूड इन द कोर्ट यार्ड. और ऐसे ही उसको अरेंज किया गया था कि डॉल हाउस जो है वो कोर्ट यार्ड में था. दे माइट आस्क द गर्ल्स एट स्कूल, और हो सकता है कि दे मे आस्क द गर्ल्स स्कूल में कि आकर के वो देखें. और सिर्फ 2 पीपल एट अ टाइम कैन कम टू लुक, सो दैट बहुत सारे आएंगे तो चाय पानी एवरीथिंग हैज़ टू बी डन. नॉट टू से टू टी ऑफ कोर्स, और टू कम ट्रेप्सिंग थ्रू द हाउस. सो दैट वो कोर्टयार्ड में रखा गया था, इसीलिए उसको आंगन में पीछे तरफ रखा गया था, सो दैट कि कोई बाहर हाउस में ना चला आए, टी के लिए ना पूछे, या वॉकिंग नीडलेसली इन टू द हाउस वो ना करे, बट जस्ट टू स्टैंड क्वाइटली इन द कोर्ट यार्ड वाइल इजाबल पॉइंटेड आउट द ब्यूटीज. लॉटे एंड केजिया लुक्ड प्लीज्ड. ठीक, एंड बट दे वर जस्ट आस्क्ड टू stand in the courtyard, और Isabel will point out the beauties. Lotte and Kezia looked pleased कि ठीक है I'll do the same, but hurry as they might. By the time they had reached the tarred palings of the boys' playground, the bell had begun to jangle. और जैसे ही ये तो all decided things थी कि हाँ I will go, I will speak, but now as they माइट इन द बाय द टाइम दे हैड रीच, मतलब जैसे ही वो स्कूल में बॉयज़ प्ले ग्राउंड तक पहुँचे, दैट वॉज इन द टार्ड पेलिंग्स दैट वॉज कवर्ड विथ टार, दैट वॉज अ फेंसिंग दैट वॉज कवर्ड विथ टार, ठीक, ब्लैक टार. तो उस टाइम तक कोल के जैसा होता है वो भी ब्लैक ब्लैक. तो बाय द टाइम द बेल हैड बिगन टू जैंगल, और उसी टाइम पर ही बेल जो है वो जल्दी से बज गई थी. They only just had time to whip off their hats and fall into the line before the roll was called. और उनके पास सिर्फ इतना ही समय था उस समय पर कि just to whip off, remove their hats, stand in the line, और इससे पहले कि उनका जो नाम है वो बुलाया जाए, रोल नंबर जो है वो बुलाया जाए. Never mind, Isabel tried to make up it by looking very important and mysterious. और उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, इजाबल सोची कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी. एंड इट विल सीम एज इफ इट इज़ वेरी मिस्टीरियस, कोई बहुत खुफिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. बाय विस्परिंग बिहाइंड हर हैंड टू द गर्ल्स, एंड अपने जो पीछे गर्ल्स थी उनको कहती गॉट समथिंग टू टेल यू एट प्ले टाइम, कि जब भी प्ले टाइम लंच ब्रेक होगा तो आई एम गोइंग टू टेल यू सर्टेन थिंग्स. These are the red covered sofa, ठीक है, एंड द पिक्चर्स ऑन द वॉल एज यू कैन सी हियर, ये पूरा डॉल हाउस का ही हिस्सा है. दीज आर द फेंसिंग, जिसको यहाँ पर पैलिंग्स बोला गया है. ठीक, प्ले टाइम आया और उस टाइम पर इजाबल वॉज सराउंडेड. द गर्ल्स of her class nearly fought to put their arms round, to walk away with her, to beam flatteringly, to be her special friend. और जितने भी उसकी फ्रेंड्स थी और जितने भी उसके क्लासमेट्स थे, तो they were putting
दे वर फाइटिंग टू पुट आर्म्स अराउंड हर, कि कोई उसके साथ चले. जैसे किसी का बर्थडे होता है, छोटे बच्चे थे तो जब भी किसी का बर्थडे होता था तो एवरी वन वॉज दैट बर्थडे चाइल्ड्स फ्रेंड. सिमिलरली यहाँ पर एवरी वन वॉन्टेड टू बी द फ्रेंड ऑफ इजाबल. दे वॉन्टेड टू वॉक अवे विद हर, टू बीम फ्लैटरिंगली, कि स्माइल कर रहे हैं ब्राइटली सो दैट आई कैन फ्लैटर दैट गर्ल, टू बी हर स्पेशल फ्रेंड. शी होल्ड अ कोर्ट अंडर द ह्यूज पाइन ट्री, मतलब वहाँ पर एक पाइन ट्री है बड़ा सा, और उसी के अंदर ही उसने एक सभा के जैसे बैठाई, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी उनकी क्लासमेट्स थी वहाँ पर. एट द साइड ऑफ द प्ले ग्राउंड. नजिंग मीन्स टू टच और टू पुश विद एल्बो, ऐसे करके एक दूसरे को धक्का मारना, कोनी मारना जिसे कहते हैं. गिगलिंग, लाफिंग टुगेदर. द लिटिल गर्ल्स प्रेस्ड अप क्लोज, वो आपस में जस्ट बिकॉज कि उनको बात सुननी थी कि समथिंग इंपॉर्टेंट हैज़ टेकन प्लेस, वो सब एकदम पास में एक दूसरे को प्रेस कर रहे थे. देन एंड द टू हु स्टेड आउटसाइड द रिंग वर द टू हु हैव ऑलवेज बीन आउटसाइड द लिटिल कैलवीज. अब यहाँ पर बात होती है उन लोअर क्लास चिल्ड्रन की, लोअर क्लास पुअर चिल्ड्रन की, ठीक, जिनकी यहाँ पर बात हो रही है और जिनको हमेशा ही उस कॉन्वर्सेशन से अलग रखा गया था. दे न्यू बेटर दैन टू कम एनी वेयर नियर द बर्नल्स. उनको ये पता था कि दे कैन गो एनी वेयर दे वॉन्ट, बट बर्नल्स के पास आना उनके बस का नहीं था, बिकॉज मतलब दिस इज़ द हायर क्लास फैमिली, तो दे वर नॉट अलाउड इवन टू टॉक टू देम, जस्ट बिकॉज कि वो उनको भाव नहीं देते थे. फॉर द फैक्ट वॉज द स्कूल द बर्नल चिल्ड्रन वेंट. और अब इसमें यहाँ पर रीज़न बताया गया है कि वाई इज़ इट सो, कि ये जो क्लास डिफरेंस यहाँ पर दिखाया गया है ये ऐसा क्यों दिखाया गया है. ठीक, तो यहाँ पर बताया गया है दैट द स्कूल, जो बर्नल चिल्ड्रन वहाँ पे रहते थे, जो 2 बेटियाँ वहाँ पर पढ़ती थी, दे वेंट टू वॉज नॉट ऑल द काइंड ऑफ अ प्लेस देयर पेरेंट्स वुड हैव चूजन इफ़ देयर हैड बीन एनी चॉइस. अगर इस पूरे एरिया में अगर सिर्फ एक ही स्कूल है तो ऑब्वियसली दे हैव नो चॉइस. एक ही स्कूल है तो कहीं और चॉइस नहीं है भेजने की. तो दिस वाज द फर्स्ट रीज़न कि अगर उनके पेरेंट्स के पास चॉइस होती कहीं और उसको भेजने की तो यहाँ पर हम उनको नहीं भेजते. बट देयर वॉज नन, इट वॉज द ओनली स्कूल फॉर माइल्स, मीलों दूर तक ये सिर्फ एक ही स्कूल था उस एरिया में. द कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे इसके, जो चिल्ड्रन थे नेबरहुड के, जज की लिटिल गर्ल है, डॉक्टर की डॉटर है, स्टोर कीपर्स चिल्ड्रन है, मिल्कमैन चिल्ड्रन है, ऑल वर सपोज टू मिक्स टुगेदर. ठीक, किसी के पेरेंट्स मिल्कमैन है, स्टोर कीपर है, डॉक्टर हैं, जज है, हायर पोस्ट लोअर पोस्ट सब के सब एक साथ मिक्स हो जाते थे. नॉट टू स्पीक ऑफ देयर बीइंग इक्वल नंबर ऑफ रूड लिटिल रफ लिटिल बॉयज़ एज वेल. और ऑब्वियसली ये भी मतलब यहाँ पर दिस हैज़ ऑल्सो टू बी टोल्ड कि वहाँ पर इक्वल, जहाँ पर आप गर्ल्स की बात करते हो वहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ रूड रफ लिटिल बॉयज़ भी थे. बट द लाइन हैड टू बी ड्रॉन समवेयर, और कहीं ना कहीं तो उस लाइन को ड्रॉ करना था जहाँ पर आप कितने ही लोगों से कितना ही मिक्स करोगे इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप इन द स्कूल. इट वॉज ड्रॉन एट द कैलवीज, और वो लाइन जो थी वो कैलवीज पर ड्रॉ की गई थी कि ये दोनों लिटिल सिस्टर्स को हम हमेशा अलग रखेंगे. Many of the children, including the Burnells, were not allowed even to speak to them. कई सारे बच्चों को तो मना कर दिया गया था कि इन दोनों बच्चों से बात नहीं करनी है, स्कूल में भी और घर में भी. They walked past the Kelvies with their heads high, and they were taught कि whenever Kelvies are there or anywhere, they are just supposed to keep their heads high in the air. As they set the fashion in all matters of behavior, the Kelvies were shunned by everybody. And just because कि they had kept, जो बाकी girls थे, they had kept fashion in all matters of behavior. मतलब मॉरालिटी नहीं, बट येस द हाई टर्म्स ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स यहाँ पर शो किए गए हैं. तो उस टाइम पर द कैलवीज वर शन्ड बाय एवरीबडी, अवॉइडेड एंड रिजेक्टेड बाय एवरीबडी. दैट वाज अ बिहेवियर दैट दे अदर पीपल हैड शोन टू कैलवीज. Even the teacher had a special voice for them and a special smile for the other children. तो ऑब्वियसली जो टीचर थी उनका भी सेम यही रवैया था. शी हैड ए स्पेशल वॉइस फॉर देम, उनके लिए अलग आवाज़ थी, उनके लिए अलग थी, मे बी स्वीट और रूड. ठीक, एंड ए स्पेशल स्माइल फॉर द अदर चिल्ड्रन, एंड ऑब्वियसली द स्वीटेस्ट बिहेवियर टू द अदर रईस चिल्ड्रन. When Lil Kelvy came up to their desk with a bunch
of dreadfully common looking flowers. Now here this is the sister. Kelvies की जब आप बात करते हो, यहाँ पर I will write, Kelvies की जब आप बात करते हो तो उसकी भी दो सिस्टर्स थी, एल्स दैट इज़ द बिगर एल्डर सिस्टर एंड लिल दैट वाज अ लिटिल सिस्टर. ठीक, तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है लिल की. और इसमें बर्नल्स में कौन दो सिस्टर्स थी? पहले तो यू शुड रिमेंबर द नेम्स चिल्ड्रेन, अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी. ठीक, तो इजाबल वॉज द एल्डर सिस्टर एंड लिटिल वॉज केजिया. तो ये रिच पीपल हैं, ये पुअर पीपल हैं, पुअर फैमिली है, एक ही फैमिली की बात हो रही है यहाँ पर. तो लिल क्या बोला गया कि टीचर भी वैसे ही थे जैसे बच्चे थे, उनके पास हमेशा अदर चिल्ड्रन के लिए ज़्यादा अच्छी स्माइल थी. बट स्टिल देयर वाज अ लिल दैट वाज अ गर्ल हु वॉज मेकिंग ऑफ ब्रिजिंग दिस गैप. वो एक ब्रिज गैप को, ये जो डिफरेंस था, क्लास डिफरेंस था, इसको ब्रिज करने की कोशिश करती थी क्योंकि वो अपनी टीचर के लिए फ्लावर ले आती थी. बट उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता था. देयर वर द डॉटर्स ऑफ स्प्राई, मतलब ये जो थी जिनकी यहाँ पर बात हो रही केल्वीज की. ठीक, तो ये दे वर द डॉटर ऑफ अ स्प्राई मीन्स एन एक्टिव वेरी हार्ड वर्किंग लिटिल वॉशर वुमेन. धोबिन जो होती हैं, जो ऑब्वियसली कपड़े धोते हैं. ठीक, हु वेंट अबाउट फ्रॉम हाउस टू हाउस बाय द डे, जो घर घर जाते थे कपड़े वपड़े धोने के लिए. दिस वॉज ऑफुल इनफ. पहली चीज़ तो यही बहुत ज़्यादा बुरा था. बट वेयर वॉज मिस्टर केल्वे, बट मिस्टर केल्वे जो उनके फादर हैं वो कहाँ पर हैं? किसी को ये चीज़ नहीं पता थी, बट हर कोई यही कहता था. एवरीबडी सेड दैट ही वॉज इन प्रिजन. सो दे वर द डॉटर्स ऑफ अ वॉशर वुमेन एंड ग्योलबर्ड मीन्स दे वर द daughters of a washerwoman and the person who is jailed or who is in prison. Very nice company for other people's children. Obviously they had a very great conversations about this conversation. ठीक, about this कि मतलब अगर कोई डिस्कशन करना होता तो ये ऐसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती थी कि हाँ उनके जो मम्मी पापा हैं वो ये करते हैं. And they looked it why Mrs. Kelvy made them conspicuous, hard to understand means कि एंड दे लुक, और वो दिखते भी वैसे ही थे. कैसे दिखते थे? द रीज़न इज़ कि वाई मिसेस केल्वी मेड देम सो कॉन्स्पिक्यूअस, वेरी ईजिली नोटिस्ड, वॉज हार्ड टू अंडरस्टैंड. कि उनको हमेशा उन दोनों बच्चियों को, जो पुअर बच्चियाँ थी, क्यों उनको ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली नोटिस हो जाए. हम भी अगर कोई बहुत अतरंगी सा कपड़ा पहन कर आए जाएंगे, चटक लाल कलर, तो ऑब्वियसली आई विल बी वेरी मच ब्राइट इन टू द सिनेरियो. ठीक, तो सिमिलरली उसको भी, उन दोनों बच्चों को भी ऐसे कपड़े पहनाए जाते थे कि वो बहुत ज़्यादा ईजिली नोटिस हो जाते थे. अब वो कैसे कपड़े थे? द ट्रुथ वॉज दे वर ड्रेस्ड इन बिट्स गिवन टू हर बाय द पीपल फॉर होम शी वर्कड. जिन लोगों का से ये के लिए ये काम करती थी, उन्हीं लोगों के मतलब वहीं पर ही पीपल यूज टू, वहाँ पर उनको कपड़े दे दिए जाते थे और उन्हीं कपड़ों के बिट्स को, हिस्सों को, टुकड़ों को सिल करके वो एक ड्रेस बना देती थी. लिल द लिटिल सिस्टर फॉर इंस्टेंट हु वॉज अ स्टाउट, शी वॉज अ लिटिल फैट, शॉर्ट एंड फैट. शी वॉज अ प्लेन चाइल्ड विद ब्रिक फ्रेकल्स. उसके फेस पे यहाँ पर बहुत सारे फ्रेकल्स थे. स्पॉट्स होते हैं, नेचुरली होते हैं, एंड कुछ तो फिल्टर्स में आपने देखा होगा, स्नैपचैट के फिल्टर्स में यहाँ पर फ्रेकल्स होते हैं. ठीक, शी केम टू स्कूल इन अ ड्रेस मेड फ्रॉम द ग्रीन आर्ट सर्च टेबल क्लॉथ. जो टेबल क्लॉथ्स होते हैं उससे बनाई गई एक ड्रेस थी, विद रेड प्लश स्लीव्स फ्रॉम द लॉगिन्स कर्टन्स मीन्स कर्टन से रेड प्लश स्लीव्स बनाई गई थी. अभी आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो. हर हैट पर्च्ड ऑन द टॉप ऑफ हर हाई फोरहेड वॉज ग्रोन अप वुमेन्स हैट. किसी बड़े ग्रोन अप की वुमेन हैट थी वो. एंड वंस द प्रॉपर्टी ऑफ मिसेस लेकी द पोस्ट मिस्ट्रेस. इट वॉज टर्नड अप एट बैक एंड ट्रिम्ड विद लार्ज स्कारलेट क्विल. एंड अगेन इसको टर्न अप कर दिया था, मतलब ऑपोजिट करके उसमें एक लंबा सा फेदर लगा दिया गया था रेड कलर का. तो शी यूज टू लुक लाइक अ गाय, शी लिटिल गाय शी लुक्ड, एंड इट वाज इम्पॉसिबल नॉट टू लाफ. और उसको देखो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको देख करके कोई हंसे ना. शी वॉज लाइक दिस. ठीक है, ये आप देख रहे हो कि कैसे
पूरे ग्रुप में लोगों को यहाँ पर बातें कर रहे हैं पाइन ट्री के अंडर, एंड देन द टू लिटिल सिस्टर्स आर केप्ट हियर, जो एकदम सेपरेट है. शी हाउ शी इज़ लुकिंग. ठीक है. प्लश स्लीव्स आप देख सकते हो जो थोड़ी सी बेल स्लीव्स की जैसी होती हैं, एंड देन टेबल क्लॉथ से बना हुआ ये, कर्टन से बना हुआ ये, एक हैट है जो ऑब्वियसली लूज सी है, एंड फ्रेकल्स उसके फेस पे देख सकते हो. शी इज़ शॉर्ट हाइटेड, शी इज़ लिटिल फैट, एंड देयर इज़ अ फेदर ऑल्सो हेयर. ओके, तो ये उसकी एक मतलब इमेजिनरी इमेज आप इसको समझ सकते हो. देन नेक्स्ट इज एंड हर लिटिल सिस्टर आर एल्स. अच्छा वेट, Lil was a elder sister, and then was her little sister or else, means else was a little sister जिसकी यहाँ पर बात की गई. तो she was the little one and Lil was the elder one. Wore a long white dress. She was wearing a long white dress rather than a nightgown. No, it will not consider. We can consider it as a nightgown also. And there was a pair of little boys' boots that she was wearing. तो उसकी भी I'll show you the photo so that you are able to understand. ये होते हैं freckles जिसकी यहाँ पर बात की गई है. बड़ी बड़ी सी आँखें उसकी, लंबा सा गाउन पहने रहती है, and then the boots. Okay. So but whatever or else wore, she would have looked strange. She was tiny fishbone, means ऐसे लग रहा था जैसे she was looking like a fishbone. She was so small, ऐसे करके कि इसको किसी कोई भी इसको ऐसे तोड़ सकता है, मतलब she was looking so small. Okay. Very thin, very tiny, and with cropped hair and enormous solemn eyes, means sad eyes. तो विश बोन की यहाँ पर बात की गई है. दैट इज़ अ वी शेप्ड बोन फॉर्म्ड बाय द फ्यूज्ड क्लेविकल्स इन द बर्ड्स एंड सम डायनासोर्स. इसको फेमस, मतलब दिस इज़ फेमस बिकॉज टू पीपल पुल द एंड्स अपार्ट. द पर्सन हु स्नैप्स ऑफ द लॉन्गर पार्ट गेट्स द विश ग्रांटेड. तो इसको विश बोन इसीलिए बोला जाता है बिकॉज ये बर्ड्स में होता है एंड बर्ड्स एंड डायनासोर्स में. तो अगर आप इसको ऐसे करके अपार्ट करते हो, जिसके पास ज़्यादा बड़ी बोन आती है उसकी विश पूरी होती है. दिस इज़ नोन एज विश बोन. तो वो ऐसे दिखती थी कि वेरी थिन, ठीक, and like a little white owl, and she used to look like her eyes used to look like a big enormous eyes, badi eyes, and she used to look like a little white owl. Nobody had ever seen her, किसी ने उसको हंसते हुए नहीं देखा. She scarcely even spoke. She went, कभी बोलती भी नहीं थी. She went through the life holding on to Lil with a piece of Lil's skirt screwed up in her hand. और वो हमेशा अपनी बड़ी बहन लिल के पीछे भागती रहती थी एंड मतलब उसी को ही पकड़े रहती थी. उसकी जो स्कर्ट थी, लिल की जो स्कर्ट थी, वो उसको पकड़े रहती थी. वेयर लिल वेंट एल्स फॉलोड. और जहाँ जहाँ लिल जाती थी वहीं वहीं पर एल्स यूज टू फॉलो. इन द प्ले ग्राउंड, ऑन द रोड टू फ्रॉम स्कूल, वेयर लिल मार्चिंग इन फ्रंट आर एल्स होल्डिंग ऑन बिहाइंड. जहाँ जहाँ लिल आगे चल रही थी वहीं पर ही एल्स उसके पीछे पीछे चल रही थी. Only when she wanted anything and when she was out of breath, our Lils gave Lil a tug, twitch, and Lil stopped and turned around. Means और कभी भी अगर एल्स थक जाती थी तो वो उसको एक ट्विच देती थी, टग देती थी, मीन्स ऐसे करके पकड़ती थी उसको, ऐसे करके बुलाती थी, पकड़ लेती थी उसे कि एंड उस टाइम पर लिल यूज टू स्टॉप एंड शी यूज टू टर्न अराउंड. द केल्वीज नेवर फेल्ड टू अंडरस्टैंड ईच अदर. लिल को ये समझ में आ जाता था कि अच्छा मेरी सिस्टर अब थक गई है, कि जहाँ जहाँ लिल जाती थी उसके पीछे पीछे वो चलती रहती थी. नाउ दे हॉवर्ड एट द एज. नाउ दे वर मूविंग एट द एज. यू कुडेंट स्टॉप देम लिसनिंग व्हेन द लिटिल गर्ल्स. नाउ दीज आर द गर्ल्स जो बर्नल्स की टीम में थी, ठीक, बर्नल सिस्टर्स की टीम में थी. दे टर्न राउंड एंड स्नियर्ड लिल एज यूजुअल, गेव अ सिली शेम फेस स्माइल, बट आर एल्स ओनली लुक्ड. तो यहाँ पर बोला गया है कि नाउ दे मूव्ड एट द एज. अब ये लोग जहाँ पर एजेस वाले एरिया में जा रहे थे, यू कुडेंट स्टॉप देम लिसनिंग. आप उनको रोक नहीं सकते हो कि तुम हमारी बातें मत सुनो. वो उतनी करीब जा कर के सुनती थी दोनों, लिल और एल्स. तो जब भी ये लिटिल सिस्टर्स ऐसे करके टर्न अराउंड करती थी और उनको डांट देती थी या उनको डिसरिस्पेक्ट कर देती थी, लिल हमेशा एक यूजुअल सी शेम फेस्ड स्माइल देती थी. उसका फेस ही ऐसा था
कि उसको कोई शर्म आ नहीं रही है. ओके. एंड एल्स जो थी शी ओनली लुक्ड, वो कोई भी मतलब एक्सप्रेशन नहीं शो करती थी. एंड देन इजाबल्स वॉइस so very proud went on telling the carpet was made great sensation, so did the beds were with real bedclothes, the stove with the oven door. when she finished Kezia broken, और जब वो अपने डॉल हाउस के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी उस टाइम पर केजिया केम एंड शी सेड दैट यू हैव फॉरगॉटन द लैम्प इजाबल, तुम अपने जो लैम्प है उसके बारे में बताना भूल गई हो. ओ येस सेड इजाबल, देयर इज़ अ टाइनी लिटिल लैम्प ऑल मेड ऑफ येलो ग्लास. वो कह रही कि वहाँ पर एक टाइनी लिटिल लैम्प भी है जो येलो ग्लास से बना है, विद अ वाइड ग्लोब दैट स्टैंड्स ऑन द डाइनिंग रूम टेबल. और वहाँ पर एक वाइड, उसी में ही एक वाइड ग्लोब है दैट स्टैंड्स ऑन अ डाइनिंग रूम टेबल. यू कुडेंट टेल इट फ्रॉम द रियल वन, तुम उसे इतना नहीं बता सकती हो कि ये रियल वाला नहीं है. द लैम्प वॉज बेस्ट ऑफ ऑल, क्रेजिया कंटिन्यू करती कि जो लैम्प है वो सबसे सुंदर है वहाँ पर. शी थॉट इजाबल वॉजेंट मेकिंग हाफ इनफ ऑफ द लिटिल लैम्प, और उसको ऐसा लगा कि इजाबल इतना भी नहीं बता, मतलब उसको जितना उस लैम्प को डिस्क्राइब करना चाहिए उसका 50% भी वो नहीं कर पा रही है. बट नो बडी पेड अटेंशन, बट किसी को सब चीज़ों से मैटर ही नहीं था. इजाबल वॉज चूजिंग द टू who were to come back with them that afternoon and see it. और एवरी डे वो दो लोगों को चुनती थी, तो उस दिन उसने 2 people को चुना जो उसके घर आएंगे. शी चोज एमी कोल एंड लेना लॉगिन्स. But when the others knew they were all have a chance, they couldn't be nice enough to Isabel. और जब सबको पता था कि अच्छा हमको 2 करके जाना है उसका घर, वो वाला डॉल हाउस देखने के लिए, तो everyone was being so nice to Isabel. One by one they put their arms round Isabel's waist and walked her off. And जहाँ जहाँ वो जाती थी वहीं वहीं तक ये लोग चले जाते थे, keeping the arms round her waist. They had something to whisper to her secret, Isabel's my friend, and then they had some or the other thing to tell to each other or to Isabel itself that she is my friend. Only the little Kelvies moved away forgotten. There was nothing more for them to hear. और उसके बाद just because कि they all went from that side, तो जो little Kelvies थी they were, उनके बगल से सब गुजर गए और अब उनके पास सुनने के लिए कुछ भी नहीं था. डेज पास, धीरे धीरे करके दिन गुजरते गए. एज मोर चिल्ड्रन सॉ द डॉल्स हाउस, द फेम ऑफ इट स्प्रेड. फेम धीरे धीरे करके उस डॉल हाउस की इंक्रीज होती जाती थी. इट बिकेम द वन सब्जेक्ट द रेज, मीन्स द एंगर सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट. वाई? बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पर पीपल वर आस्किंग ईच अदर कि तुम गए कि नहीं गए. द वन क्वेश्चन वॉज हैव यू सीन बर्नर्स डॉल हाउस, तुमने क्या वो डॉल हाउस देखा है? एवरीवेयर देयर वॉज वन क्वेश्चन इन दैट स्कूल. ओह एंट इट लवली, क्या वो बहुत सुंदर नहीं? अच्छा तुमने देखा नहीं? ओ आई सी, मतलब कोई बात नहीं. देन अब यहाँ पर क्लास डिफरेंस की बात हो रही है. व्हेन इट वॉज अ डिनर आवर, मीन्स अगेन इन द स्कूल एरिया में ही देयर वॉज अ डिनर टाइम ऑल्सो, कि एक टाइम पीरियड था जिसको लंच ब्रेक जैसे होता था, तो वहाँ पर इट वॉज अ डिनर टाइम ऑल्सो. थोड़ा सा होगा स्कूल में. वी कम बैक एट 2:30. वॉज गिवन अप टू टॉकिंग अबाउट इट अगेन आफ्टर डेज ऑल्सो. इट वॉज अ डिनर आवर एंड देन द लिटिल गर्ल्स वर देयर. अंडर लिटिल गर्ल्स मीन्स द बर्नल्स, और जो उनका ग्रुप था अंडर द पाइन ट्रीज ईटिंग. अब वो क्या दिखा रहे हैं? वो अपना वो अच्छा सा लंच खा रहे हैं. दैट वॉज देयर थिक मटन सैंडविच विद बिग स्लैब्स ऑफ जॉनी केक स्प्रेड विद बटर. तो दीज वर द थिंग्स दे वर ईटिंग वाइल ऑलवेज एज नियर एज दे कुड सेड द केल्वीज. और जितना पास वो जा करके केल्वीज बैठ सकते थे वो भी बैठ गए. आर एल्स ऑल्सो होल्डिंग ऑन टू द लिल, listening to while they chewed their jam sandwiches out of the newspaper soaked with red blood, red blobs. मतलब अगर आप जैम लगा रहे हो सैंडविच ब्रेड में तो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर में या किसी में रैप्ड अप थी और वो न्यूज़पेपर में भी वही जैम के ब्लॉब्स लग गए थे. ठीक है, पीसेस लग गए थे. सो मदर सेड केजिया, can't I have the Kelvies just once. अब वहाँ पर they were also talking about them कि मदर can't I have the Kelvies just once with me.
तो वहाँ पर सर्टेनली नॉट सेड केजिया. वाई नॉट, मतलब ये भी एक कॉन्वर्सेशन है दैट वॉज इंक्लूडेड इन टू इट. दैट वो कहती है कि नहीं, केजिया कहती, अच्छा केजिया वॉज लिटिल डिफरेंट बर्नल्स, क्योंकि वो बहुत स्वीट थी, ह्यूमन कनेक्शन उसमें थोड़ा ज़्यादा था. तो कहती कि क्यों नहीं मैं, कि जैसे हर कोई केल्वीज़ को इग्नोर कर रहा था, वो कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं केल्वीज़ को जॉइन, मतलब दिखाऊं डॉल हाउस. तो वो पूछती कि क्यों नहीं. रन अवे केजिया, यू नो क्वाइट वेल नॉट. तो उसकी मदर कहती कि नहीं, तुम उसे नहीं दिखा सकती. एट लास्ट एवरीबडी हैड सीन इट, आखिर में सबको ही देख चुका था उसे. एंड दैट डे द सब्जेक्ट रादर फ्लैग. नाउ इट बिकेम लेस स्ट्रोंगर. पीपल वॉज नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर इन द डॉल हाउस. इट वॉज अ डिनर आवर. द चिल्ड्रन स्टूड टुगेदर अंडर द पाइन ट्रीज एंड सडनली एज ए लुक. एंड अब जब धीरे धीरे सबने देख लिया था, तो उसके बाद देर वॉज डिनर आर अगेन. द चिल्ड्रन वर देयर, गर्ल्स वर देयर, एंड देन द चिल्ड्रन स्टूड अंडर द पाइन ट्री सडनली एज ए लुकड एट द केल्वीज ईटिंग आउट ऑफ देयर पेपर. जब उन्होंने देखा डिनर आवर में कि वो अपने पेपर्स, न्यूज़पेपर से निकाल करके कुछ खा रही हैं. ऑलवेज बाय देमसेल्व्स, ऑलवेज लिसनिंग. दे वॉन्टेड टू बी हॉरिड टू देम. दे वॉन्टेड टू बी मीन्स ये जो गर्ल्स हैं, they always wanted to be unpleasant to them. Emmy Cole started the whisper. Lil Kelvy is going to be a servant when they grow up. अब यहाँ पर एमी कोल अगेन, one of the richest families there, and वो लिल केल्वी पर कमेंट करती हैं कि जब ये बड़ी होगी तो ये क्या बनेगी, सर्वेंट बनेगी. Oh how awful, said Isabel Bernal and made eyes on Emmy. तो उन्होंने ऐसे करके इजाबल ने एमी को देखा और बोला कि ये कितनी बुरी बात है, कितनी गलत बात है. Emmy swallowed in a very meaning way and nodded to Isabel as she is seen her mother do on occasions. तो Emmy swallowed in a very meaning way and nodded to Isabel एंड सेड, मतलब जैसे उसने अपनी मदर को करते हुए हमेशा देखा है वैसे ही वो खुद भी कर रही थी. येस इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, कि वो कहने लगी कि हाँ ये सच है. तो शी विस्पर्ड कि क्या मैं उससे पूछ लूँ. तो जैसी में कहती है बेट यू डोंट, नहीं नहीं मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती. तो लेना कहती है, मीन्स वहाँ पर मैनी पीपल वर देयर ना, जितने भी डिनर टाइम में गर्ल्स थी वहाँ पर स्कूल में ही. तो दे सेड, लेना सेड दैट पुअर आई एम नॉट फ्राइटेड, नो मैं डर नहीं रही हूँ. सडनली शी गेव अ बिट स्क्वील मीन्स अ लाउड नॉइज एंड दे डांस्ड, दे स्टार्टेड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द अदर गर्ल्स. वॉच watch me now, said Lena, sliding, gliding, dragging one foot, giggling behind her hand. Lena went over to the Kelvys. Now Lena went dancing, moving here and there. She went to the Kelvys. Lil looked up for her from her dinner. वो जो अपना रैप खा रही थी उसमें से वो ऊपर ऐसे करके देखती है. She wrapped the rest of the dinner quickly. Or else stopped chewing. And what was coming now? Is it true you are going to be servant when you grow up? Lil Kelvy श्रिल्ड लेना ने वहाँ पे ज़ोर से बोला कि क्या ये सच है कि तुम जब बड़ी होगी तो तुम सर्वेंट बनोगी. लिल केल्वी. डेड साइलेंस. वहाँ पर एकदम शांति हो गई कि जो चीज़ें आप हमेशा पीठ पीछे बोलते हो आप उसके सामने बोल दे रहे हो. बट इंस्टेड ऑफ आंसरिंग लिल ओनली गेव हर सिली शेम फेस्ड स्माइल. बट इंस्टेड ऑफ आंसरिंग और फाइटिंग लिल ने एकदम शांति से उस चीज़ को हैंडल किया. ओनली शी गेव अ बिग फेस्ड स्माइल. She didn't seem to mind the question at all. वो बिल्कुल she was not even minding the question. उसके फेस से बिल्कुल ये भी नहीं पता चल रहा था. What a sell for Lena. And then it was a you can say a defeat for Lena. The girls began to titter. जो बाकी गर्ल्स थी because obviously उसकी इंसल्ट हो गई, उसने पलट के जवाब ही नहीं दिया. एंड शी टुक इट वेरी नॉर्मली कैजुअली. तो बाकी गर्ल्स जो थी वो हंसने लगी. उसको लगा, लेना को लगा कि उसकी इंसल्ट हो गई है. लेना कुडेंट स्टैंड दैट. वो उस चीज़ को बियर नहीं कर पाई थी. शी पुट हर हैंड्स ऑन हर हिप्स. शी शॉट फॉरवर्ड. येस योर फादर इन प्रिजन, शी हिज्ड स्पाइटफुली. And then she, out of anger, being annoyed, she just spoke back to Lil that your father is in prison, right? This was such a marvelous thing to have said. और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ थी जो इन्होंने बोली.
दैट द लिटिल गर्ल्स रश्ड अवे इन अ बॉडी डीपली डीपली एक्साइटेड. मतलब कि अब जस्ट बिकॉज कि यू कैन सी द people here how they are behaving with those little girls. They are behaving as if कि उनकी इंसल्ट करके हम बहुत ज़्यादा जॉयस हैं. They were wild with joy. Someone found a long rope. They began skipping. किसी ने लंबी सी रस्सी ढूंढी, वो लोग स्किपिंग करने लगे. And never did they skip so high, ran out so fast and do such daring things as on that morning. और कभी उन्होंने इतनी खुशी जताई नहीं, दिखाई नहीं जितनी उनको उस समय पर लगी थी. तो you can see the irony written here that the girls feel joyful after being cruel to someone. In the afternoon, Pat called for the Burnell children with a boogie and they drove home. And then later they मतलब Pat was calling the Burnell children कि वापस चलो, अब घर जाना है हमें, क्योंकि वहाँ पर visitors थे. Isabel and Lotte who liked the visitors went upstairs. अब यहाँ पर इनकी maybe the more sisters would be there. ठीक, तो यहाँ पर इनकी जो बात हो रही थी, तो दे वर द विजिटर्स अपस्टेयर्स, तो दे वेंट टू चेंज देयर पिनाफोर्स. मतलब जो ड्रेस उन्होंने पहनी थी, दे वेंट टू दिस यू कैन सी हियर. ठीक है, दिस इज़ द बगी जिसकी यहाँ पर बात हो रही है. ओपन एयर होती है ये बगी. देन दिस इज़ द पिनाफोर, जो ऊपर से एक ड्रेस पहन ली जाती है, दैट इज़ यूजुअली स्लीवलेस, उसको चेंज करने के लिए. ओके, तो यहाँ पर बोला गया है दैट ये जितने भी बच्चे थे, इजाबेल एंड लॉटे, दे वेंट अपस्टेयर्स टू चेंज बट केजिया थीव्ड आउट एट द बैक. बट वो चुपके से जो कोर्टयार्ड था जहाँ पर वो डॉल हाउस था, वहाँ पे वो चली गई. नोबडी वॉज अबाउट, आसपास कोई भी नहीं था. शी बिगैन टू स्विंग ऑन द बिग वाइट गेट्स ऑफ द कोर्टयार्ड. शी बिगैन टू स्विंग, वहाँ पर वो खेलने लगी, कूदने लगी, झूला झूलने लगी. Presently looking along the road she saw two little dots. अब वहाँ पर जब वो झूला झूली थी, वहाँ पर she saw two little dots were there. They grew bigger, they were coming towards her. और then she saw कि now she could see that one was in front and one was close behind. Obviously they were the Kelvies. Kezia stopped swinging. She slipped off the gate as if she was going to run away. और उसके बाद वो गेट के पास चली गई, ऐसे लगा था जैसे वो अभी भाग जाएगी. Then she hesitated. Kelvies came nearer and beside them walked their shadows. और Kelvies थोड़ा थोड़ा पास आ रही थी उस गेट के जो पीछे वाला दरवाज़ा था. Very long, stretching right across the road with their hands in the buttercups. Kezia clambered back on the gate and she had made up her mind. She swung out. तो फिर वो वापस गई, गेट के पास गई जहाँ से वो लोग गुजर रहे थे. एंड उसके बाद केजिया वहाँ पर बोलती है हेलो. शी सेड टू द पासिंग केल्वीज वहाँ से गुजर रहे थे और वहीं पर ही केजिया द लिटिल गर्ल, शी सेज हेलो. दे वर सो अस्टाउंडेड. दे कौन है यहाँ पर? केल्वीज. वो इतने ज़्यादा हैरान हो गए that they stopped. Lil gave her little smile, Else also stared. दोनों ने अपनी छोटी छोटी सिली सी स्माइल दी और एल्स सिर्फ उसको ऐसे करके घूर के देख रही थी कि why is she calling me. जब इतना मतलब इग्नोर किया जाता है हमें, तो how come she is calling us. तो you can come and see our doll house. तो वो कहती है कि नाउ यू कैन कम एंड सी आवर डॉल्स हाउस इफ़ यू वांट टू. अगर तुम चाहती हो तुम देख सकती हो. सेट केजिया. शी ड्रैग्ड वन टो टू द ग्राउंड एंड देन जस्ट बिकॉज कि वो झूला झूल रही थी, तो शी ड्रैग्ड वन टो टू द ग्राउंड एंड शी सेट कि अगर तुम चाहते हो हमारा हाउस देख सकती हो. बट एट दैट लिल टर्न रेड एंड शुक हर हेड क्विकली. उसने कहा कि हाँ हाँ मुझे देखना है. वाई नॉट केजिया. योर माँ टोल्ड आर माँ यू वॉजन टू स्पीक टू अस. पर उसने कहा कि बट तुमको हमारी मम्मी ने बोला था, तुम्हारी मम्मी ने हमारी मम्मी को बोला था कि तुमको हमसे बात नहीं करनी है. ओ वेल सेड केजिया. यू डिडंट नो वॉट टू रिप्लाई. उसे नहीं पता था कि क्या रिप्लाई करना है. इट डजेंट मैटर. यू कैन कम एंड सी आवर डॉल्स हाउस ऑल द सेम. कम ऑन. अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई देख नहीं रहे, तुम आ करके कर सकती हो, देख सकती हो उसे. बट लिल शुक्ड हर हेड स्टिल हार्डर. डोंट यू वॉन्ट टू.
आस्क्ड केजिया, केजिया ने पूछा कि क्या तुमको नहीं देखना है. सडनली देयर वॉज अ ट्विच, पीछे से था कि हाँ ठीक है, नहीं नहीं चलो चलो चलो, बिकॉज एल्स वॉज देयर एट द बैक. अ टग एट लिल्स स्कर्ट, मीन्स देयर वॉज अ टग कि चलो देखते हैं चल करके. सडन हाँ मूवमेंट वॉज देयर ना कि चलो चलो देखते हैं चल करके. तो शी टर्न राउंड, आर एल्स वॉज लुकिंग एट हर विद बिग इम्प्लोरिंग आइज विद ग्रेट इमोशन. शी वॉज फ्राउनिंग कि let us go there. For a moment Lil looked at else very doubtfully, but then our else twitched her skirt again and then she started forward, means कि चलो दोनों लोग जाने लगे. Kezia led the way like the two little stray cats. They followed across the courtyard to where the doll's house stood. और वहाँ पर वो लोग चले गए जहाँ पर डॉल्स हाउस था. Like little cats. There it is, said Kezia. There was a pause. Lil breathed loudly, almost snored. Or else was still as stone. कि वो दोनों देख रहे थे कि कितना beautiful ये doll house है. I'll open it for you, said Kezia kindly. She undid the hook and they looked inside. उसने उसका doll house का ऐसे करके दरवाज़ा खोला. There was a drawing room, the dining room, and that's the. फिर उसके बाद पीछे से किसी की आवाज़ आती, केजिया, बिकॉज शी वॉज आंट बेरल्स वॉइस, कि वहाँ पे उसकी जो आंटी थी वो वहाँ पर आ जाती हैं. केजिया, फिर से उसने आवाज़ लगाई. दे टर्न राउंड, अब वो दोनों लिटिल सिस्टर्स अलॉन्ग विथ केजिया वो ऐसे करके पीछे देखे तो उसमें देयर वॉज आंट बेरल. शी वॉज स्टैंडिंग देयर स्टेयरिंग एज इफ शी कुडेंट बिलीव, और वो देख रही थी ऐसे जैसे कि शी कैन नॉट इवन बिलीव कि केजिया उन दोनों लिटिल सिस्टर्स को यहाँ पर लेकर आई. हाउ डेयर यू आस्क द लिटिल केल्वीज इन टू द कोर्टयार्ड, said her cold furious voice. You know as well as I do, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है that you are not supposed to talk to them even. Run away children, उन दोनों बच्चियों से कहती है भाग जाओ यहाँ से. Run away at once and don't you dare come back. गलती भी मत करना दोबारा वापस आने की. एंड देन शी स्टेप्ड इनटू द यार्ड एंड शूट देम एज इफ दे वर चिकन्स, और ऐसे करके उनको भगा दिया हैंड्स वेव करके जैसे कि वो चिकन्स हो. ऑफ यू गो इमीडिएटली, शी कॉल्ड कोल्ड एंड प्राउड, और उसके बाद उसने उसको भी बोला, केजिया को भी बोला कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ. दे डिड नॉट नीड टेलिंग ट्वाइस, दोबारा उनको ज़रूरत ही नहीं थी ये चीज़ बताने की. बर्निंग विथ शेम, श्रिंकिंग टुगेदर, क्योंकि डर रहे थे. लिल हडलिंग अलॉन्ग हर लाइक हर मदर, जैसे कि स्मॉल एंड क्लोज थोड़ा डरे हुए बच्चे हो जाते हैं तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा डर करके वहाँ से भाग गए. समहाउ दे क्रॉस द बिग कोर्टयार्ड एंड स्क्वीज्ड थ्रू द वाइड गेट. विकेड डिसोबीडियंट लिटिल गर्ल, केजिया के ऊपर अब वो कहने लगी यू आर विकेड, यू आर डिसोबीडियंट लिटिल गर्ल, said Aunt Beryl bitterly to Kezia and she slammed the doll's house, और उन्होंने डॉल्स हाउस का जो डोर था उसको ऐसे करके बंद कर दिया ज़ोर से. Then that afternoon had been awful. A letter had come. अच्छा, यहाँ पर can be seen as a reason कि why Aunt Beryl was also angry, कि कोई person होंगे that was Willie Brent, वहाँ से एक terrifying threatening letter आया था, as if she had to meet him that evening in the Pullman's bush. He had come to the front door and asked the reason why, means कि उनको उनसे मिलना था. But now she had frightened those little, just because कि she was upset with those work things, तो now उसका सारा गुस्सा इन्होंने इस पे निकाल दिया था, the little rats of Kelvies, and had given a good scolding to Kezia also, and now her heart felt lighter. That ghastly pressure was gone. Now अब वो जो घासली प्रेशर था वो तो चला गया. शी वेंट बैक टू द हाउस हमिंग, बड़बड़ाते हुए वो अपने रूम में वापस चली गई. बेरल्स आंट बेरल्स, व्हेन द केल्वीज वर आउट ऑफ द साइट ऑफ बर्नल्स, दे सैट डाउन ऑन द बिग ड्रेन पाइप. एक ड्रेन पाइप था, नाली जैसा होता है, बड़ा सा था, तो उसके ऊपर ही वो बैठ गई. लिल्स चीक वर स्टिल बर्निंग. शी टुक ऑफ द हैट विद अ क्विल, उसने अपनी वो जो हैट पहनी थी उसको निकाला. एंड देन दे वर सिटिंग देयर एज यू कैन सी हियर. यहाँ पर एक बड़ा सा ट्री है, यहाँ पर पीपल द काउज आर देयर. ये एक पतली सी वो गई है, वाटर बॉडी जैसी गई है. तो
यहाँ पर वी आर सीइंग दैट लिल्स चीक वर स्टिल बर्निंग. शी टुक ऑफ द हैट विद अ क्विल. ड्रीमली दे लुक्ड एट द हे पेडॉक्स, मीन्स जो स्मॉल फील्ड है जहाँ पर हॉर्सेज ईट. पास्ट द क्रीक, मीन्स वो जो पतली सी नैरो सी वाटर बॉडी है उसके उस पार वो देख रहे थे. एंड देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ वैटल्स वेयर द लॉगिन्स काउज वर वेटिंग टू बी मिल्क्ड. मतलब देयर वॉज ये दीज आर द काइंड ऑफ ट्रीज यू कैन से. ठीक, तो देर वहीं पर ही काउज वर वेटिंग टू बी मिल्क. वॉट वर द थाट्स. अब यहाँ पर जब वो दोनों बच्चियाँ थी उनके थाट्स कहते जिनको भगा दिया गया था. प्रेजेंटली आर एल्स नश्ड क्लोज टू हर सिस्टर, वो उससे ऐसे करके चिपकी हुई थी. एंड बट नाउ शी हैड फॉरगॉटन द क्रॉस लेडी, वो जो लेडी थी उसके बारे में तो ये लोग भूल गए थे. शी पुट आउट अ फिंगर एंड स्ट्रोक्ड हर लिटिल सिस्टर्स क्विल. वो जो उसके लिटिल सिस्टर का जो फेदर था उसको ऐसे करके उसने ऐसे किया. एंड देन शी स्माइल्ड एट हर रेयर स्माइल. एंड देन लेटर शी स्माइल हर रेयर स्माइल जो एल्स ने दी नहीं थी. आई सी द लिटिल लैम्प, शी सेड सॉफ्टली. तो यहाँ पर ये कौन बोलते हैं, एल्स बोलती है कि मैंने वो लिटिल लैम्प देखा वहाँ पर. क्या तुमने देखा उसे? वो पूछती, एल्स पूछती है केजिया उससे, जो दूसरी वाली थी लिल से वो पूछती है. तो दे बोथ वर साइलेंट वंस अगेन. तो व्हाट डज इट शो? नाउ दिस शोज द जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन एज वेल एज द इनर जॉय जो आप के अंदर ऑब्वियसली होता है. एंड देन again if the you see the entire story you will understand the class difference, the behavior that those girls do with these girls. ठीक, तो this is the theme of the story, the inner joy, the human connection, that is the hope, that is the Kezia is a kind of hope in those class differences that you can see. So this is all for today. I hope you all have understood the story well. Rest we'll do soon. Keep preparing. Best wishes. Thank you.